Welcome back to my channel. This is Anjani, and in this video these are the topics which we will cover. So let's start. Before reading this budget line, I want to tell you that every consumer tries to reach higher and higher indifference curve to maximize his satisfaction, and that is what we read from the previous video. But he's not able to do so. Every consumer tries to reach higher and higher IC. बिकॉज हायर आईसी मीन्स हायर गुड्स, जो ज़्यादा गुड्स होंगे दोनों में. गुड्स एक्स भी ज़्यादा हो सकता है, गुड वाई भी ज़्यादा हो सकता है, बट ही इज़ नॉट एबल टू डू सो. वाई? बिकॉज फर्स्टली ही हैज़ टू पे द प्राइस फॉर द गुड्स एंड सेकेंडली बिकॉज ऑफ हिज लिमिटेड इनकम. ठीक है, अगर आपके पास रुपये ही 500 है तो आप सिर्फ उतने ही रुपीज स्पेंड कर सकते हो. यू कैन नॉट स्पेंड मोर देन दोज रुपीज. ओके, सो before reading the budget line, we need to know what the budget is. Budget is basically अगर आप macro economics terms में देखें, macro या फिर government budget which is chapter in the macro economics, अगर आप वहाँ पे देखें, so it is the estimation of revenue and expenses. But अगर हम इसको अभी just for our understanding we see, so it is a real purchasing power of consumer. Now what is this real purchasing power means? For example, अगर मेरे पास 500 रुपीज़ है, so उस 500 रुपीज़ से मैं क्या चीज़ खरीद सकती हूँ. For example 10 रुपीज़ की या फिर 1 kg कोई भी स्वीट 100 रुपीज़ की, तो मैं 5 kg खरीद सकती हूँ स्वीट्स को उस 500 रुपीज से. सो दैट 5 kg is a real purchasing power. So budget means here is that it is the real purchasing power of consumer. So budget line क्या होती है? Budget line shows us combination of two goods. It is the combination of two goods which provides the consumer or consumer can purchase with his limited income and given prices of the goods. So budget line basically दो goods का combination जो कि consumer अपनी income से purchase कर सकता है और given prices of the goods. As we are assuming that consumer is consuming only two goods, so we are saying that he purchased the combination of two goods with his limited income. And we are assuming that consumer spent all his money income on the purchase of these two goods. मतलब he is not saving anything, he is spending. Okay, but we need to know this budget line with the help of this particular graph. So यहाँ पे money income consumer की 50 है. This equation is of utmost importance कि ये equation इस equation को आपने consumer equilibrium when you read in the cardinal utility analysis में consumer equilibrium in case of two goods, so आपने equation वहाँ भी देखी होगी. So this particular equation is of utmost importance. This is price of good X, this is quantity of good X plus price of good Y multiplied by quantity of good Y. It is equal to the money income of the consumer. Money income के बराबर ये होगी. So what you can see that the maximum, so price of good X is 10 and price of good Y is 5. When the price of good X is 10, तो maximum मैं कितना good X को खरीद सकती हूँ? अगर मेरी इनकम 50 है, मेरी इनकम तो 50 है और एक गुड जिसका प्राइस 10 रुपये है, तो मैं कितना खरीद सकती हूँ? 5 क्वांटिटी में उस गुड की खरीद सकती हूँ. सो दैट इज अ रीजन ये यहाँ पे इट इज हेयर 5. अब प्राइस ऑफ गुड वाई इज 5 रुपीज एंड मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर इज ₹50. कितना मैं मैक्सिमम खरीद सकती हूँ गुड वाई? आंसर इज 10. तो द मैक्सिमम आई कैन बाय इज 10. ओके, सो हमने फिर ये ग्राफ प्लॉट करा. सो कंज्यूमर यहाँ पे कोई भी कुछ भी ऑप्ट कर ले, इस पर्टिकुलर लाइन पे कोई भी वो कॉम्बिनेशन ऑप्ट कर रहा है, it cost exactly equal to him at equal to his money income. So all the points on this line shows that consumer is buying all combination which cost exactly equal to his money income. आप कंज्यूमर यहाँ पे A पॉइंट को भी चूज कर सकता है ना, जिसमें 1 क्वांटिटी ऑफ गुड X है और 2 क्वांटिटी ऑफ गुड Y है. ही कैन डू दैट. बट हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कंज्यूमर अपनी सारी इनकम
खर्च कर रहा है. सो दिस ए पॉइंट कंज्यूमर कैन अफोर्ड दिस ए पॉइंट. कंज्यूमर यहाँ पे कोई भी पॉइंट इस लाइन से नीचे का अफोर्ड कर सकता है, तो उसको हम बजट सेट कहते हैं. उसको हम बजट सेट कहते हैं. ओके. नाउ बजट कंस्ट्रेंट. कंस्ट्रेंट बेसिकली क्या होता है, हर्डल होता है. तो हर चीज में हमको कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट मिलता है. फॉर एग्जांपल कंज्यूमर अपनी बजट लाइन, अपने बजट से ज्यादा की चीजें नहीं खरीद सकता, या फिर वो बजट लाइन है जो उसकी क्या डिफाइन कर रही है कि वो कितने गुड और गुड एक्स और कितना गुड वाई खरीद सकता है विद हिज लिमिटेड मनी इनकम एंड गिवन प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड वाई. कंज्यूमर उससे ज्यादा नहीं खरीद सकता, अपनी मनी इनकम से ज्यादा नहीं खरीद सकता. सो वो उसका कंस्ट्रेंट है कि ही कांट गो बियॉन्ड दिस बजट लाइन. एंड दिस बजट सेट एंड बजट कंस्ट्रेंट ये थोड़े थोड़े आपको सिमिलर से लगेंगे. एंड इवन बजट कंस्ट्रेंट की जो इक्वेशन होती है, इट इज पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई विच इज लेस देन इक्वल टू एम आई, क्योंकि कंज्यूमर उससे ज्यादा नहीं जा सकता है आगे. Now we are understanding this with the help of this particular table. तो यहाँ पे different combinations मैंने दिए हैं A से लेकर I तक. If you are making, तो आप make sure करना कि आप कोई छोटा टेबल बनाए, particularly कोई छोटी टेबल बनाए in your exam, because आप इसको फिर ये time consuming है, but here it is just for your कि मैं आपकी concepts को यहाँ पे clear करूँ. So I am taking this table. So A combination पे कंज्यूमर 0 क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स और 16 क्वांटिटी ऑफ गुड वाई को कंज्यूम कर रहा है, तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर उसकी मनी इनकम की इक्वल होना चाहिए. ठीक है. तो अगर कंज्यूमर गुड एक्स को बिल्कुल कंज्यूम नहीं कर रहा है, तो मैक्सिमम वो गुड वाई को कितना कंज्यूम कर सकता है, अपनी मनी इनकम अगर उसकी 80 है तो 16 कर सकता है. ओके. फिर बी कॉम्बिनेशन पे कंज्यूमर 1 क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स कंज्यूम कर रहा है एंड 14 क्वांटिटी ऑफ गुड वाई की, 14 यूनिट ऑफ गुड वाई की वो कंज्यूम कर रहा है. तो 1 क्वांटिटी ऑफ गुड वाई इज, अगर आप इसको इस इक्वेशन में पुट करोगे, सो इट इज 10 क्योंकि प्राइस ऑफ एक्स है इंटू 1 इज योर क्वांटिटी प्लस प्राइस ऑफ वाई इज ₹5 इंटू 14 विच इज यूनिट्स ऑफ गुड वाई कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग. ये हमारे 80 के इक्वल होने चाहिए. तो यहाँ पे नाउ सी ये होते हैं नहीं होते हैं. सो ऑल द कॉम्बिनेशन हियर दे आर इक्वल टू 80. सो इसका मतलब क्या है, दैट दिस इज मेकिंग दिस बजट लाइन, ये बजट लाइन को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है बिकॉज ये सारे ही बंडल्स 80 के हैं. इज दिस टेबल. सो ऑल द पॉइंट्स आर इक्वल टू 80. सभी पॉइंट्स यहाँ पे इक्वल टू 80 आ रहे हैं. दे आर मेकिंग द बजट लाइन. तो एक गुड को कंज्यूम करने के लिए कंज्यूमर वाई की यूनिट्स को सेक्रीफाइस कर रहा है. तो और ये जो सेक्रीफाइस है ये सिर्फ आप देखो यहाँ पे, तो ये सिर्फ 2 का सेक्रीफाइस 16. सो यू कैन सी हियर दैट 16 से 14 पर जब कंज्यूमर गया तो उसने 2 यूनिट सेक्रीफाइस करे. हम इस सेक्रीफाइस को भी पढ़ेंगे अच्छे से. ओके. अब आप सबसे पहले यहाँ पर आप हमें इसको स्लोप देखनी है. सो हमने यहाँ पे ये इसको प्लॉट कर दिया. ठीक है. एंड दिस इज अ स्ट्रेट लाइन और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोप हो रही है. आप देखो डाउनवर्ड जा रही है. ये आप इनिशियल आप यहाँ पे थे, फिर ये नीचे गई है. ओके. सो एट जो स्लोप होती है वो क्या होती है, कंज्यूमर की स्लोप क्या होती है, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल. ओके. वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल होती है. वर्टिकल पर हम गुड वाई को मेजर कर रहे हैं और एक्स एक्सिस पर हम गुड एक्स को मेजर कर रहे हैं. सो मैक्सिमम आप देखो जो ए है, ए मैक्स, तो यहाँ पर कंज्यूमर एक्स को 0 कंज्यूम कर रहा है, तो वो वाई को मैक्सिमम 16 कंज्यूम कर सकता है. और ये कैसे आया, जब आपने अपनी मनी इनकम को प्राइस ऑफ गुड वाई से डिवाइड करा. क्योंकि देखो अगर आप इस इक्वेशन को देखो, ये तो पूरी 0 हो चुकी है. आपको क्वांटिटी ऑफ वाई निकालनी है तो आप पी वाई को डिवाइड ही तो करोगे यहाँ पे. तो मतलब मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे जो आप निकाल सकते हो, आप ये ऐसे निकाल सकते हो, एम आई डिवाइडेड बाय पी वाई. सेम हेयर आप यहाँ पर भी यही करोगे. ठीक है. अब आपके पास यहाँ पे गुड वाई नहीं है तो आप सिर्फ गुड एक्स को कंज्यूम कर रहे हो, जिसका प्राइस ऑफ एक्स, जिसका प्राइस यू नो इट इज 10. क्यू एक्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, एम आई अपॉन पी एक्स करोगे.
तो यहाँ पे हमको ये MI अपॉन PY एंड MI अपॉन PX यहाँ पे हमें मिल गए। कंज्यूमर यहाँ पे इस बंडल को भी ऑप्ट कर सकता था, बट वो नहीं करेगा बिकॉज ये अंडर स्पेंडिंग दिखा रहा है एंड ये ओवर स्पेंडिंग दिखा रहा है। इसको नहीं कर सकता क्योंकि इसका कंस्ट्रेंट है कि उसके पास जब इनकम ही इतनी है यहाँ पर आ रही है तो वो इतने गुड्स कैसे खरीद सकता है, नहीं खरीद सकता। अब हम इसकी स्लोप की बात कर रहे हैं। सो स्लोप क्या है इसकी, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल क्या हुई, OA अपॉन OI एंड OA बेसिकली क्या है, MI अपॉन PY एंड OI क्या है, MI अपॉन PX। एंड जब यहाँ पे ये MI कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो PX अपॉन PX अपॉन PY इज द फाइनल आंसर। सो यहाँ पे बेसिकली हमने यहाँ पे ये डिफाइन कर दिया दोबारा। सो गुड Y हमने Y एक्सिस पे मेजर किया था, गुड X हमने X एक्सिस पे मेजर किया था। स्लोप क्या होती है, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो बेसिकली Y अपॉन X हुई ना। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो इस टेबल में, दैट एडिशनल क्वांटिटी ऑफ यूनिट ऑफ गुड X, एडिशनल यूनिट ऑफ गुड X के लिए कंज्यूमर यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा है, 2 यूनिट्स का सेक्रीफाइस चल रहा है थ्रू आउट। और प्राइस ऑफ गुड X एंड प्राइस ऑफ गुड Y भी हमारा कांस्टेंट रहता है। तो अगर हम उनको डिवाइड करके एक टर्म, जैसे कि यहाँ पे प्राइस ऑफ गुड X है 10, प्राइस ऑफ गुड Y है 5, डिवाइड करोगे आपका आया 2, तो वो भी सेम रहेगा थ्रू आउट। एंड ये जो आपका डिफरेंस है 16 से 14 में, ये भी सेम आ रहा है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो बजट लाइन की स्लोप है वो बेसिकली चेंज इन Y और चेंज इन X से भी हम डिनोट कर सकते हैं, और हम उसको PX अपॉन PY भी कह सकते हैं, ठीक है। अब स्लोप ऑफ बजट लाइन इज बेसिकली हम उसको प्राइस रेशियो और MRE कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। सो जैसे कि हमने MRS पढ़ा था, ऐसे ही हमारा मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज भी है। MRS में हम हमारा जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो सेम रहता है, उसमें हम कोई चेंज नहीं आने देते, और ऐसा ही MRE में भी है। इसमें हम एक्सपेंडिचर हमारा सेम रहता है बिकॉज ये हमारा यहाँ पे हम बजट पढ़ रहे हैं, बजट लाइन पढ़ रहे हैं। सो इट इज द रेट एट which market requires exchange of one good to obtain an extra unit of other good। एक गुड को ऑब्टेन करने के लिए हम दूसरे गुड को बेसिकली जो सेक्रीफाइस करते हैं, जिस रेट डिफाइन करता है, द रेट एट विच मार्केट रिक्वायर्स, जिस रेट से हम एक्सचेंज कर रहे हैं 2 गुड्स को और एक गुड को सेक्रीफाइस कर रहे हैं दूसरे गुड को ऑब्टेन करने के लिए, वो हमारा बेसिकली MRE होता है, ओके। अब MRE हमारा क्या है, बजट लाइन की स्लोप है, एंड बजट लाइन की स्लोप is MRE। MRE क्या हुआ, change in Y, change in X, this change in Y is equal to PX upon PY, so we can say that MRE is equal to PX upon PY। again I am repeating, slope बजट लाइन की MRE है, ठीक है। MRE क्या है, वो रेट जहां पे आप एक गुड को दूसरे गुड से चेंज कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, दैट इज आपका MRE। और आपका लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कि जो ये 80 रुपीज है, इतना आप एक्सपेंड कर सकते हो, स्पेंड कर सकते हो, नॉट एक्सपेंड, इतना हम स्पेंड कर सकते हैं, कंज्यूमर इतना स्पेंड कर सकता है, उसको चेंज नहीं करना है आपको विदाउट अफेक्टिंग द लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर। सो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में क्या देखा था, डेट PX अपॉन PY और चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X हमने यहाँ पे प्रूव कर दिए थे। अब बजट लाइन की जो स्लोप होती है वो MRE होती है। एंड अभी जब हमने कहा दैट कि स्लोप एक्चुअली में वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल होती है, विच इज बेसिकली चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X, जो कि हमारी कांस्टेंट है थ्रू आउट, एंड वो PX अपॉन PY भी कांस्टेंट है थ्रू आउट। सो व्हाट वी कैन से इज दैट कि PX अपॉन PY इज स्लोप ऑफ बजट लाइन and slope of budget line is called MRE. So basically MRE is PX upon PY. Okay. Ab now see, but why this budget line is represented by price ratio? बट अगेन यहाँ पे अगर आपको ये डिफाइन करना होगा क्यों फिर भी हम इसको प्राइस, ठीक है चलो चेंज इन Y चेंज इन X हमने डिफाइन कर दिया, बट स्टिल ये कैसे हमारा रिप्रेजेंट कर रही है प्राइस रेशियो। एक तो आपको यही देना है कि
चेंज इन वाई, चेंज इन एक्स, और ये जो पी एक्स अपॉन पी वाई है ये आपका सेम आ रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि बजट लाइन इज बेसिकली योर प्राइस रेशियो, बट हम इसको और डिफाइन कर रहे हैं. सो कंज्यूमर इज एट पॉइंट ए. It indicates all those bundles. Budget line indicate all those bundles which consumer can purchase by spending his limited money income. कि वो कितना खर्च कर सकता है, बजट लाइन पूरी ये शो कर रही है. और यहाँ पे आप कोई भी कॉम्बिनेशन आप देख लो, ये सब 80 रुपीज़ आप स्पेंड कर सकते हो, ये आपको वो डिफाइन करेगी, ये आपको वो बताएगी ये लाइन. ठीक है. सो फॉर एन एक्स, अब कंज्यूमर यहाँ पे ए पॉइंट पर है जब उसके पास गुड एक्स बिल्कुल नहीं है और गुड वाई मैक्सिमम है. सो व्हेन फॉर एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड एक्स, कंज्यूमर को 2 यूनिट्स ऑफ गुड वाई की सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है. लेकिन ये जो नंबर ऑफ, क्योंकि मनी इनकम तो फिक्स है आपकी, बट ये जो नंबर ऑफ आप गुड्स को सेक्रीफाइस कर रहे हो, समवेयर इट डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ द गुड्स, कि प्राइस एक्चुअली में कितना है गुड का. नाउ सी दिस इज फॉर योर नोट्स पर्पस, आप इसको कॉपी कर सकते हो, बट सी दिस नेक्स्ट स्लाइड फॉर दिस एग्जाम्पल. अब यहाँ पे कंज्यूमर, नाउ सी दिस पर्टिकुलर वन, आप ये वाला देखो. सो सी दिस पर्टिकुलर, ओके. तो यहाँ पे px हमारा 10 है, जो कि हम ऑलरेडी था, px इज 10. हम उसकी अगर हमको 1 क्वांटिटी लेनी है, अगर हमें एडिशनल 1 यूनिट कंज्यूम करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1. अब हमें प्लस, बिकॉज दिस इज द इक्वेशन, एंड 5 दिस इज प्राइस ऑफ गुड वाई. अब हमें क्या करना है, बेसिकली कितने यूनिट्स वाई की सेक्रीफाइस करनी है, तो हमें मतलब कितना यूनिट हम सेक्रीफाइस करेंगे. सो क्वांटिटी ऑफ वाई इज बिकम्स 14, मतलब क्वांटिटी ऑफ वाई 14 होगी, तो हमने 2 यूनिट को सेक्रीफाइस किया. हमारे पास 16 था और अब यहाँ पे आंसर हमारा 14 आ रहा है. इट मीन्स वी सेक्रीफाइस 2 यूनिट्स. लेकिन अगर हमारा यहाँ पे प्राइस कम होता, अगर हमारा प्राइस लाइक इन दिस एग्जाम्पल इट इज गिवन ₹7 होता, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे दैट इज पी वाई पे 7 आता, तो आपकी जो क्वांटिटी है वो 10 आती. क्वांटिटी इट मीन्स और कम हो जा रही है. सो बेसिकली व्हाट ऑल आई वांट टू से इज दैट अगर हमारा प्राइस कम है तो आप ज्यादा क्वांटिटी खरीद रहे हो. आप देखो यहाँ पे 5 था आपका, तो यहाँ पे आपकी क्वांटिटी 14 हो गई. इसको हमने सॉल्व किया जब क्वांटिटी 14 हो गई हमारी. एंड यहाँ पे जब हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ, अगर हमारा प्राइस 7 होता तो यहाँ पे क्वांटिटी हमारी 10 हो जा रही है. इसका मतलब हमको 6 यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ रही हैं. कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ रही हैं? 6 यूनिट्स हमारी सेक्रीफाइस हो रही हैं. सो समवेयर इट डिपेंड ऑन द प्राइस. So that is the reason why the budget line is presented by the price ratio. So somewhere it depend on the price. Budget line is a downward sloping. हमने देखा बजट लाइन जब हमने बनाई डाउनवर्ड स्लोपिंग है. डाउनवर्ड स्लोपिंग का मीन्स that there is a negative relationship between good X and good Y. It means more of one good can be bought only by decreasing some unit of other good. And slope की जहाँ पे बात आ रही है, तो you can tell about the MRE and the PX upon PY. Budget line is a straight line. So we know that the budget line is represented by price ratio. Budget line आपने देखी ना, अभी straight थी, वो straight fall हो रही थी. Budget line क्योंकि प्राइस रेशियो से बनती है एंड प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहता है, दैट इज द रीजन व्हाई द बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन. दिस इज फॉर योर नोट्स पर्पस. आप इसे कॉपी कर सकते हो बाय स्टॉपिंग द वीडियो एंड आई एम मूविंग फॉरवर्ड. नाउ शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन. बजट लाइन आपकी शिफ्ट भी हो सकती है, मतलब अब हम देखते हैं कैसे होती है. बजट लाइन हमारी कब शिफ्ट हो सकती है? या तो जब हमारी इनकम चेंज हो जाए, या किसी कॉमोडिटी का प्राइस चेंज हो जाए, या फिर दोनों ही हो जाए. बट जनरली हम यहाँ पे ये 2 ही केस देखते हैं. बट अगर आपको जस्ट एक्सपेंडिंग योर नॉलेज, तो आप बना सकते हो जब दोनों चेंज हो रहे हैं तब क्या इफेक्ट आ रहा है ग्राफ पे. Now we are moving forward. So we are seeing in this particular graph effect of change in income. Income पे change, जब income change होती है तब क्या होता है? So money income consumer की 50 है,
प्राइस x का 10 है और y का 5 रुपीज है। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ में मैंने गुड एक्स एंड गुड वाई नहीं मेंशन किया, सो प्लीज राइट इट, आई जस्ट फॉरगॉट टू मेंशन। अब यहाँ पे इनिशियल जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा, जब कंज्यूमर की मनी इनकम 50 थी, द मैक्सिमम ऑफ गुड वाई विच ही कैन बाय इज 10, क्वांटिटी 10, द मैक्सिमम ही कैन बाय ऑफ गुड एक्स इज 5. But now income of consumer changes. But now the income of consumer changes to ₹40. मतलब प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ मनी इनकम कम हो गई। अगर आपकी इनकम कम हो जाती है और प्राइस किसी भी चीज का वही है तो आप बेसिकली उस चीज को आप कम कंज्यूम कर सकते हो। नाउ सी दिस ग्राफिकली, सी दिस ऑरेंज वाली लाइन, ओके, सी दिस ऑरेंज वाली लाइन। इन दिस आप देख सकते हो जब कंज्यूमर पहले यहाँ पे 50 थी कंज्यूमर की मनी इनकम, तो ही कैन बाय मैक्सिमम 10 क्वांटिटी ऑफ गुड वाई एंड 5 क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। लेकिन जब उसकी मनी इनकम कम हो गई तो 8 क्वांटिटी ऑफ वाई ही कैन बाय मैक्सिमम एंड 4 क्वांटिटी ऑफ गुड वाई। तो मतलब यहाँ पे उसकी जो परचेसिंग पावर है वो कम हो चुकी है, ओके। अब ये जनरली भी अगर आप सोचो आपके पास 100 रुपीज है और एक चॉकलेट 10 रुपए की आती है तो आप 10 चॉकलेट खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पैसे ही 50 रुपए हैं और प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ चॉकलेट के, तो आप सिर्फ 5 ही तो उसको कंज्यूम करोगे। सो यहाँ पे सेम वही हो रहा है, ठीक है। एंड हमने ये कैसे निकाली बजट लाइन, px जो इक्वेशन है हमारी px qx प्लस py गुड वाई इक्वल टू मनी इनकम, इसको हमने रखा। एंड व्हाट वी डू इज दैट, इनिशियल वाली लाइन हमने देखी कि प्राइस ऑफ x को पहले हमने प्राइस ऑफ x एंड क्वांटिटी ऑफ x को हमने जीरो कर लिया, दैट इज कि हमने क्वांटिटी कुछ कंज्यूम ही नहीं करी, हमने ये अज्यूम कर लिया गुड x की, तो वो पूरा जीरो हो गया, प्लस प्राइस ऑफ गुड वाई और जो क्वांटिटी ऑफ गुड वाई है वो हमने वहाँ पे प्राइस पुट किया इक्वल टू mi और उससे हमारा क्वांटिटी ऑफ वाई फाइंड आउट हो गई। इन द सेम वे वी कैन डू द गुड एक्स। ये हमने ऑल्दो पिछली स्लाइड्स में इट वाज गिवन, although it was given in the previous slide the equation, but I think but still you need to know कि how ये निकलती कैसे है, okay। So अब now we are seeing when the income of consumer changes to ₹60, अब इनकम बढ़ चुकी है, प्राइस आपका उतना ही है, इनकम आपकी बढ़ गई है, तो इट मीन्स अगर आप जनरली सोचे तो आप ज़्यादा ही आप किसी भी गुड को कंज्यूम कर सकते हो। तो हमने इस इक्वेशन में px qx प्लस py गुड y में हमने ये हम पुट करेंगे। सो यहाँ पे px qx प्लस py qy इक्वल टू mi, हमने क्या करा, हमें अगर कोई भी पॉइंट में दोबारा बता रही हूँ, अगर हमें कोई भी पॉइंट फाइंड आउट करना है कि हमें कैसे निकालें, सो व्हाट वी कैन डू दैट कि हमने क्वांटिटी ऑफ x की पहले यहाँ पे जीरो कर ली, इट मीन्स हम यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ y क्वांटिटी ऑफ गुड x को नहीं कंज्यूम कर रहे हैं। जब हमने क्वांटिटी ऑफ y को जीरो ले लिया तो py अपॉन py इंटू qy ये पूरा जीरो हो जाएगा बिकॉज ये मल्टीप्लिकेशन में है। अब जो बचा py qy इक्वल टू mi, तो mi तो हमको पता है 60 है, py हमको पता है 10 है, तो हम qy निकाल लेंगे। इन द सेम वे हम यहाँ पे दूसरा मतलब कि जो एक्सट्रीम जो x का मैक्सिमम खरीद हम सकते हैं वो भी निकाल सकते हैं बाय अज्यूमिंग क्वांटिटी ऑफ y जीरो। तो जब हमने ऐसा किया सो वी गेट दिस पर्टिकुलर ग्राफ which is represented by this pink line, but what you can see here is that there is a parallel shift। भले ही आपका प्राइस राइज हुआ, भले ही आपका प्राइस फॉल हुआ, जो शिफ्ट है वो पैरेलल हो रहा है, नॉट प्राइस। भले ही आपकी मनी इनकम राइज हुई, भले ही आपकी मनी इनकम फॉल हुई, जो शिफ्ट हुआ वो पैरेलल हुआ बिकॉज प्राइस में कोई चेंज नहीं आया था। अब हम देखते हैं जब प्राइस में चेंज आएगा तब एक्चुअली क्या होगा। सो मनी इनकम 50 थी which is represented by this particular line and price of good y is 10, price of good y is 5 initially and ये हमारी initial budget line है, okay।
सो हमने देखा कि प्राइस ऑफ गुड बाय इंक्रीजेस बाय ₹5. रीड द लैंग्वेज ऑफ योर क्वेश्चन ऑलवेज. दिस इज सेइंग द प्राइस ऑफ गुड बाय इज इंक्रीजेस बाय ₹5. इसने बोला है बाय मतलब ₹5 से बढ़ी है, तो मतलब कि कितना हो गया, 10 हो गया प्राइस ऑफ गुड बाय. अब हमारा प्राइस जब इंक्रीज हो गया तो जनरली आप सोचो इनकम आपकी उतनी ही है, प्राइस किसी भी चीज का बढ़ गया तो मतलब आप उस चीज की क्वांटिटी कम खरीद सकते हो. ठीक है, अगेन हमने पुट करा उसी इक्वेशन में एंड जब हमारा आंसर आया सो यहाँ पर आया दिस पर्टिकुलर लाइन ए और सी ए जो लाइन है, दिस इज आवर न्यू बजट लाइन. तो हमने देखा कि बजट लाइन ये कैसे, यहाँ पे आपने देखा कि क्वांटिटी ऑफ गुड बाय कैसे फॉल हो गई. तो आप कर सकते हो यहाँ पे सेम व्हेन द प्राइस ऑफ गुड बाय डिक्रीजेस, बट नाउ आई एम टेलिंग यू द इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑफ गुड एक्स. ओके, अब प्राइस ऑफ गुड बाय अगर डिक्रीज हो जाता है बाय ₹5, इट मीन्स कि गुड एक्स का जो प्राइस है वो 5 हो चुका है. एवरीथिंग इज सेम, मनी इनकम इज योर सेम, प्राइस ऑफ गुड बाय में कुछ नहीं हुआ है, गुड एक्स का डिक्रीज हो गया है. इट मीन्स कितना हो गया है, अब px हमारा 5 हो चुका है. अब अगर हमारी कोई भी कमोडिटी का प्राइस फॉल हो जाता है तो इट मीन्स वी कैन बाय मोर ऑफ दैट कमोडिटी. इन जनरल ऑल्सो योर मनी इनकम इज 50 फॉर एग्जाम्पल, एंड कोई कमोडिटी लाइक फॉर एग्जाम्पल सम चॉकलेट जो कि पहले 10 की आती थी अब वो 5 की आती है, तो इट मीन्स यू कैन बाय मोर ऑफ दैट कमोडिटी नाउ. व्हेन वी पुट दैट इन इक्वेशन and we find the answer is this, the maximum we can buy is 10. So I think that's it for today. So thank you.